Hi guys, welcome back to my channel and आज है बहुत ही ज़्यादा interesting video because we are going to be reacting to the Reddit assumptions about Gen Z teacher. Let's see what Reddit has observed about Gen Z teacher. So ज़्यादा time waste नहीं करते हैं because I have all the assumptions in here और हम जल्दी से video start करते हैं. So the first assumption, first observation about Gen Z teachers is all the young teachers I see at my school seem to be great at work-life balance. I am super impressed. Thank you. It is more like a compliment to the Gen Z workforce and Gen Z teachers. So regarding work-life balance, for me work-life balance मतलब या ओवरऑल भी अगर मैं कह लूँ कि हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ ये नहीं है कि सुबह मतलब हम काम पर गए एंड देन वी डू ऑल आवर थिंग्स दैट वी प्लान टू डू और फिर हम जिम गए हमने अपना हेल्थ मेंटेन किया. समटाइम्स इट इज जस्ट अबाउट कि जो काम है उसको हम काम तक ही सीमित रखें. ऐसा नहीं है कि जो काम है उसको अपना फुल लाइफ ही बना ले कि जो काम पे हुआ बस वो हमें घर लेकर जाना ही है. समटाइम्स इट इज दैट अटेम्प्ट ऑल्सो. सो आई कैन से कि या वी आर अ लिटिल बिट more having work life balance. मतलब हम ट्राई करते हैं कि हम वर्क लाइफ बैलेंस एटलीस्ट मेंटेन करें. वी ऑल्सो मेंटेन द फर्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस कि हम सुबह काम करें, अपना जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट करें, फिर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, थोड़ा बहुत अच्छा भी खाएं, बाहर का भी खाएं, अच्छा भी खाएं, मतलब एक तरह से लाइफ को एंजॉय करें as much as we can and when we can. The second assumption is Gen Z teachers don't hesitate to take a sick day when it is needed. They know the job is a job and they need to take care of their health, including mental health, to be a good teacher. Gen Z teachers value student connection and can relate to them on levels that I can't. Gen Z teachers are excellent at using and integrating technology into their lessons. They grew up with technology. They are masters of it. I could certainly learn a thing or two from Gen Z teachers. I do agree with it that matlab, regarding the mental health part, I try and push through it and do not take a leave if I am not feeling mentally well, because कई बार आपके पास limited leaves होती हैं, so you cannot always take a leave whenever you are feeling not mentally up to the mark. And sometimes it also depends upon the work environment. अगर आपका work environment toxic नहीं है, then आपकी mental health वहां जाके फिर भी ठीक रहती है, that you talk to the other teachers या students से बात कर ली. अगर work environment toxic है, then I can understand if you take a sick leave for that. Regarding physical health, yes, if I don't feel like मेरी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है आज जाना या आज पढ़ाना, आई डू नॉट एट ऑल हेजिटेट कि मुझे ऑफ चाहिए, मतलब उसके लिए ऑफ चाहिए. एंड रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन, यस वेल, क्योंकि हमें खुद को भी जब हम अपने लेसन्स प्लान करते हैं, या हम जब खुद भी पढ़ रहे थे एग्जाम्स के लिए या कुछ भी हो, चाहे हम कॉलेज में ही पढ़ रहे थे, वी यूज टू लर्न थ्रू वीडियोज बिकॉज वो ज्यादा थोड़ी और इंटरैक्टिव लगती है. सो एज जेन जी टीचर्स वी हैव वेरियस मेथड्स. पहले होता है कि खुद लेक्चर डिलीवर करके पढ़ाओ, देन फॉर रिविजन इट इज माई ऑल्सो मेथड कि पहले मैं लेक्चर से पढ़ाऊँ एंड देन आई यूज वेरियस एनिमेटेड वीडियोज और एक्सप्लेनर वीडियोज दैट आई ऑल्सो मेक to explain them or to make them revise their concepts. So yeah, thanks for the compliment though to the teachers. Then the next assumption is emotional intelligence is still developing, but commitment is there and relationship building is on point. Very easily overwhelmed though. It's not a generation that has ever been or handled stress well. I बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. sort of agree with it because अगर हम जो वर्कफोर्स है, अगर हम जेनजी को एज वर्कफोर्स देखें, वी आर ज्वाइनिंग समवेयर बिटवीन 21 ईयर्स ओल्ड टू 25-26 ईयर्स ओल्ड के बीच में. सो जब हम अपने कलीग्स को देखते हैं जो हमसे बहुत एक्सपीरियंस में भी बड़े होते हैं और वैसे एज में भी बड़े होते हैं, सो बिकॉज हमारे पास एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है उन चीज़ों से रिलेटेड, सो येस हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप हो रही होती है एंड इट विल डेवलप थ्रू द एक्सपीरियंस. एंड सेकेंड इज ओवरवेल्म बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ हो जाते हैं और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते हैं बिकॉज अगेन एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है ये चीज. अगर तो आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी हो रखा है, तो आप उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होगा वो हैंडल फिर भी कर लोगे. अगर वो चीज एकदम ही नहीं है और कोई उस चीज को समझाने वाला भी नहीं है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए. बिकॉज जब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू एनरोल इन टू अ PhD. अब मुझे नहीं पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, हाउ डू यू अप्रोच प्रोफेसर्स, हाउ डू यू राइट एन ईमेल टू देम. सो यू हैव टू फिगर दीज थिंग्स आउट ऑन योर ओन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजेबल है. बट ऐसा बहुत ज्यादा टाइम हो भी जाता है, इवन इफ देर आर वीडियोज एक्सप्लेनिंग इट, इवन इफ आपको कोई गाइड भी कर दे, बट आपको खुद ही वो फिगर आउट करना है एट द एंड ऑफ द डे. सो ये ओवरवेलमिंग हो जाता है बहुत बारी. बट आई डू अग्री, कई बार नहीं स्ट्रेस हैंडल हो पाता बिकॉज वी आर सर्टनली न्यू टू इट एंड वी डू लैक एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू द मिलेनियल्स. सो या
Then we have, I am a late millennial, but the biggest thing I noticed is that my Gen Z colleagues will use mild cuss words or maybe talk about certain things I consider iffy with students. I don't even use the words hell, damn, ass at school, but my Gen Z coworkers say these in front of students. Matlab, I don't know which teachers are these, but if I talk about my colleagues and myself, we do not at all use any kind of cuss words जब हम lecture deliver कर रहे होते हैं, because हम ना शक्ल से already छोटे दिखते हैं. We look like them. So बात तो सही है. अगर हम उनकी ही तरह बात करेंगे और लेक्चर में ये सब चीजें यूज करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट अस एज टीचर. सो आई डू बिलीव कि आई एम देयर टीचर फर्स्ट एंड देन देयर फ्रेंड इफ दे वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. बट इफ आई एम गोइंग टू यूज दीज थिंग्स, they are not going to respect me as a teacher or see me as a teacher. So I don't promote using any kind of cuss words in the class. Next assumption is, I don't want to make any broad generalizations because people vary so wildly. Almost all of Gen Z has a solid work-life balance, but notably, I see the work part slip pretty hard. Whether it comes in preparedness for class or making adjustments, anecdotally, I've seen them been given materials and straight up copy and don't adjust names. So it will say Mrs. X instead of changing it. I've seen overall lack of creativity with lessons, almost like they have to be told step by step. I don't know if I know some pretty lousy teachers from Gen X and millennials, so I don't think anything is too off. So regarding this, मतलब जो मेरे कलीग्स भी हैं, जो मेरे साथ के टीचर्स हैं, वी प्रिपेयर सो हार्ड फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर दैट वी हैव टू डिलीवर. एंड जो भी हमें मटेरियल मिलता है, आई विल टेल जस्ट आवर प्रोसेस. वी लुक एट वन मटेरियल, देन टू मटेरियल जो स्टूडेंट्स को भी दिया होता है, देन वी चेक ऑन द नेट वट एवर इज देयर, वी चेक PYQs, एंड देन हम उस सबको मिला के हम एक लेक्चर बनाते हैं. ठीक है. और देन रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स, मोस्टली ऑल ऑफ अस डोंट इवन यूज एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन द बुक. वी यूज एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग आवर एक्सपीरियंस व्हेन वी वर स्टडिंग, और जो भी चीजें न्यूज में चल रही है, ताकि बच्चे और ज्यादा अवेयर भी हों इन सब चीजों से लेके. बट समटाइम्स मैंडेट क्या होता है, दैट यू हैव टू स्टिक टू द सिलेबस वट एवर इज गिवन इन द बुक, ताकि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी ना हो जाए, ताकि वो समझ ही ना पाए उन चीजों को. एंड वी यूज लाइक वेरियस टेक्नोलॉजीज एज वेल. ऑल ऑफ अस डू लेक्चर्स हो गए, देन वी डू द रिविजन थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड वी कंडक्ट क्विजेस, टेस्ट एक्सेट्रा. सो आई डोंट नो, हो सकते हैं कुछ लाउजी टीचर्स हों, बट जो भी टीचर्स मैंने अभी तक देखे हैं, दे आर प्रीटी हार्ड वर्किंग. सो या, तो ये थे कुछ हमारे रेडिट ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग जेन ज़ी टीचर्स एंड my views on those observations. Some were compliments, some were, yeah, their observations regarding their teachers or their colleagues. So yeah, this is it about the video. If you like this video, subscribe my channel, like and comment, and I will see you next Sunday. Bye.